the topic is like industrial applications of IoT. So first of all, I would like to show one video. So then after I will start my presentation. So let's see one video. So what is the actual IoT and how it trending? Yeah. So ma'am, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes. Air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activity. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they're used and the environment installed and using sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides the common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analysis is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product is distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Most of the products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the product coming from manufacturing, inventory, etc. The compressor of air conditioner has a sensor that emits data regarding health and temperature. This data is analyzed continuously along with their work in time. This is just one of the many scenarios. We have appliances, smart cars, smart homes, smart where IoT is redefining our lifestyle, transforming the way we practice technology. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 25 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT with X3. Okay. So thank you so much. So first of all, I would like to just start with the what is the meaning of IoT. So Internet of Things is refers to the system of interrelated, interconnected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network without human intervention. अब ये जो है एक सिर्फ डेफिनेशन है. अब एक्चुअल IoT का मतलब होता क्या है कि लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन करके हम डिजिटल रिवोल्यूशंस ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास चलो एक डिवाइस है एसी. आई वुड लाइक टू कंट्रोल माई एसी फ्रॉम माई ऑफिस. मैं ना अगर मैं 4 बजे घर पे पहुंचू, समर का टाइम है, मेरा रूम अपने आप ठंडा हो जाना चाहिए जब तक मैं घर पे पहुंचू. सो आई कैन एक्सेस माई एसी फ्रॉम माई ऑफिस. दैट इज द मीनिंग ऑफ IoT. Okay. For example, there is a good example. Google Nest is the best example of IoT. So using Google Nest, you can control your home appliances, and you can detect like
detect sensors, camera equipped, like you can control your CCTV camera also using the Google Nest. Second, another example is a Mimo, which is for a baby, small baby. So अगर एक छोटा बच्चा है अपने घर पे, लाइक मदर है जो अपना काम कर रही है, और एक छोटा बच्चा अपने या उसके अंदर है, बेड पे है, तो अगर वो रोता है तो नोटिफिकेशन उसके मोबाइल पे आ जाता है, या तो घर पे अलार्म स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको कुछ भी भूख लगती है तो रोना स्टार्ट करता है। कुछ भी अगर उसका बॉडी सेंस, उसका टेम्परेचर पे अगर हाई हो जाता है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, बॉडी को डिटेक्ट करता रहेगा, उसके बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता रहेगा। और जो भी अगर उसका टेम्परेचर की रेंज से अगर ऊपर जाता है, तो अपने आप को नोटिफिकेशन शेयर करेगा, और अपने जो भी अलार्म सिस्टम जो भी हो वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टॉपिक हुआ था IoT के बारे में। I would like to just differentiate between like what is the meaning of IoT and what is the meaning of IIoT. So IoT जो होता है वो नॉर्मली होता है लाइक अपने होम अप्लायंसेस के लिए, लेकिन IIoT क्या होता है कि लाइक इंडस्ट्री में IoT का यूज कैसे हो सकता है। लाइक इंडस्ट्री के अंदर अगर मुझे IoT अप्लाई करना है तो क्या हो सकता है, मशीन टू मशीन हो सकता है, मशीन टू ह्यूमन हो सकता है। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं IoT वर्क यूज करूँ, दैट इज टर्म एज अ इंडस्ट्रियल IoT. So difference of industrial IoT and consumer IoT. So industrial IoT का में होता है, for example, I'm just explaining my projects, what we are doing. So हमारे पास यहाँ पे एक अपना इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल। तो अपने एक तोप आती है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस, ओके Yes, sir. ओके। सो इंडस्ट्रियल IoT, अब IoT एक ऐसी चीज है जिसमें मैं थियोरेटिकल इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देयर इज नो थियरी इन IoT, बट जितना प्रैक्टिकली होगा वी कैन लर्न बेटर। तो इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल, अगर कुछ तोप है, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है बोफोर्स तोप का, जो इंडियन आर्मी के अंदर यूज होता है। अब बोफोर्स तोप में जब एक नोजल में से जब एक से गोला निकलता है, तो उसमें क्या हीट इतना प्रोड्यूस होता है कि लाइक जो नोजल होता है वो थोड़ा सिंक हो जाता है। सो अगर कोई नोजल है, इतना हाइट टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो अगर उसका जो रेडिएशन रेडियस होता है वो अगर छोटा हो जाए, तो एक टाइम अगर ऐसा आया कि भाई चलो से गोला निकला लेकिन वो वहीं पे फंस गया, तो वो वहीं पे ब्लास्ट हो सकता है। अब इंडियन आर्मी जो है अपना वहाँ पे border पे कर रहे काम, अगर वही डेटा अब मुझे चेक करना है कि भाई ये नोजल का जो डायमीटर वो जो है वो सब एग्जैक्टली परफेक्ट उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग ने क्या किया है, वहाँ पे एक सेंसर्स यूज किए हैं, जो एवरी टाइम क्या करता है, एक जो रोड होता है वो सीधा हम नोजल के अंदर डालते हैं, और वो नोजल क्या करेगा, वो सेंसर जो रोड होता है उसके अंदर हम सेंसर्स यूज करते हैं, और उसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर कहीं पे भी सेंसर्स जो भी बैंड अगर होगा तो वो डिटेक्ट करेगा, तो सीधा मेरे ऊपर मैसेज आएगा कि यहाँ पे एक फॉल्ट है, यहाँ पे ये इसका रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इतना इसको बोलते हैं कि लाइक ये जो यहाँ पे बैंड हुआ तो उसको रिपेयर करने की जल्दी से जल्दी जरूरत पड़ेगी, वरना ये यहीं पे ब्लास्ट हो सकता है। सो वी कैन लाइक इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट ऐसा है लाइक वी आर यूजिंग ड्रोन। कच्छ का एक एरिया है, कच्छ भुज में, यहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, ऐसे अपने इंडो पाक बॉर्डर पे यहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ड्रोन है जो वहाँ पे एक हैकर करके एक डिवाइस होती है, तो वो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। हैकर क्या कर रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो भी होता है, जो ड्रोन का फ्रीक्वेंसी होता है, वो डिटेक्ट करता रहता है कि अगर वहाँ पे कोई अनवांटेड ड्रोन आया कहीं से भी, तो इट विल डिटेक्ट एंड सेंड मैसेज टू दी हेड ऑफिस। सो हम वहाँ पे जो भी प्रिकॉशंस लेना हो पहले से, तो हम वहाँ पे ले सकते हैं। सो IoT से हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल IoT से, सो वी कैन लाइक communicate the machine using the digital device from anywhere. That is the actual industrial IoT and IoT. And there's a one example that is a smart parking. So everyone is like in my college is students will perform this project. स्मार्ट पार्किंग में यहाँ पे इस तरह से था कि लाइक मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू मैं यहाँ पे चेक कर सकता था कि मैं कहाँ मेरा पार्किंग स्लॉट खाली है, और मैं अगर पार्किंग स्लॉट खाली है तो मैं वहीं से बुक कर सकता था। मेरा पार्किंग स्लॉट जो वो रिजर्व हो जाता था, मुझे नोटिफिकेशन आ जाता था। और IoT जो डिवाइस होता है
और सेंसर्स का कम्युनिकेशन हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड के थ्रू हम कर सकते हैं. So another example is a smart waste and recycling. स्मार्ट वेस्ट लाइक अगर मेरे पास गार्बेज है तो क्या होता है, डोटी अपने यहाँ पे आते हैं लेकिन वो क्या विसल बजाते हैं. तो अगर मेरे पास स्मार्ट गार्बेज है तो अगर वो स्मार्ट गार्बेज अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अगर फुल हो जाता है तो सीधा नोटिफिकेशन चला जाता है और वो बंदा आके कलेक्ट कर लेता है. सो उस तरह से भी हम यहाँ पे IoT का यूज कर सकते हैं. Okay, so that's it from the PPT side. And I would like to show some projects and I would like to show some demo hands-on sessions on IoT because IoT is not a theory, it's a totally practical. So first of all, I would like to thank Parul University and give me this opportunity. And these are my contact details, email ID. You can follow me on LinkedIn, Facebook, and this is my blog. Varsha madam? Yes, sir. Should I like give hands-on on IoT? So maybe they are not having that much. You just show, sir. You Actually, demonstrate it. yeah. There is a one. Yes, there is the question. Good question. Like अगर मुझे IoT सीखना है तो पहला क्वेश्चन आता है मैं कहाँ से हार्डवेयर परचेज करूँ. So there is a one website that is a Tinkercad. So you can just create your account or using a Google account you can create also. वहाँ पे आपको एक सिमुलेशन का ऑप्शन दिया जाता है. आप वहाँ पे आर्डिनो सिलेक्ट कर सकते हो. जो भी सेंसर्स के ऊपर आपको काम करना है तो आप इनिशियली वहाँ पे काम कर सकते हो. कनेक्शंस भी कर सकते हो. अगर वो आपका हो जाए उसके बाद आपका आउटपुट भी वहाँ पे देख सकते हो कि मेरा आउटपुट किस तरह से आएगा. वहाँ पे कोड भी आप लिख सकते हो, उसको डिप्लॉय करके रन भी कर सकते हो. एंड इट्स अ टोटली लाइक अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. उसके बाद अगर आपको चलो कॉन्फिडेंट आ गया कि भाई हाँ मैं अब कर सकता हूँ तो आप आर्डिनो परचेस करके वही जो डेमो आपने किया ऑनलाइन वो आप कर सकते हो. So I just doing like a so there is a one website that is a Tinkercad. So Tinkercad I have already logged in here and go to circuit, create a new circuit. And first of all that is a जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, वैसे इसके अंदर भी होता है लाइक अ ब्लिंक LED. So let's start with the basic blink LED. So just already I'm removing everything. Okay. So in this part you can like see the all the components of IoT related components. You can see resistor, capacitor, and everything. You can use sensors also. If I want to like a sense using ultrasonic sensors. If I'm writing ultrasonics, you can see the ultrasonic distance sensors which is already using our car. And you can use Arduino. So I'm using Arduino U3 R3. Okay. So initially this is the Arduino board, which is a common device which is used for a basic IoT practical orientations. So यहाँ पे एक Arduino होता है, लाइक यहाँ पे जो होता है वो ये 5 वोल्ट Arduino को पावर सप्लाई के लिए जो भी उसके ऊपर अगर सेंसर्स काम करना है तो उसको 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए. These are the power supply pins. These are the analog. These are the digital pins. Clear? So I would like to just run one code. You can see here code. Inside the text you can write the coding part here. So by default यहाँ पे जो LED होता है, this is the LED, उसका नंबर होता है by default 13 यानी 13. So I've already mentioned here. अब Arduino के कोड को समझने के लिए यहाँ पे दो पार्ट होता है Arduino. अब Arduino के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको Arduino IDE के ऊपर काम करना पड़ेगा. Arduino के अंदर जो होता है वो this is the माइक्रो कंट्रोलर. अब यहाँ पे दो पार्ट होता है, एक लूप होता है और एक सेटअप होता है. सेटअप जो भी अगर आपको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, किसी पिन को हाई या लो इनिशियलाइज कर देना है तो वो सब कुछ पार्ट यहाँ पे होता है. और लूप आपका जो है वो इनफाइनाइट टाइम घूमता रहता है. So I have declared pin mode as a 13, which is my output pin. And inside the loop, I want to blink that LED every 1 second. So digital write function is used to like a blink the LED. For example, it's a writing function. So what it will do?
13 नंबर की पिन को क्या करेगा, हाई। अब यहाँ पे आर्डिनो के अंदर हाई एंड लो, बिकॉज इट्स यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग इन माइक्रो कंट्रोलर। सो माइक्रो कंट्रोलर पर अगर काम करना है तो आपको हाई एंड लो यानी 0 and 1 फॉर्मेट में ही काम करना पड़ेगा। सो हाई दैट मीन्स वो क्या करेगा, पिन को हाई यानी ऑन करेगा, डिले 1 सेकंड, देन डिजिटल राइट क्या करेगा, वापस 13 पिन को लो कर देगा यानी ऑफ कर देगा, एंड अगेन 1 सेकंड डिले। So I'm just starting simulation. So you can see that the LED is blinking right now. Okay. But if I want to I want to perform external LED, not the inbuilt LED. So what I'm doing, I'm just writing here breadboard. So I'm using one small breadboard. अब ये ब्रेडबोर्ड होता है, यहाँ पे ये जो लाइन होती है वो लाइक इस तरह से पूरी कम्युनिकेटेड होती है। अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का एक सप्लाई दे दूँ तो ये थ्रू आउट द लाइन सीरीज में ये 5 वोल्ट मुझे दे देगा, और यहाँ पे इस तरह से होता है। सो आई एम जस्ट राइटिंग कनेक्शंस लाइक आई वांट टू ब्लिंक एलईडी, सो आई एम राइटिंग हियर एलईडी, आई एम सिलेक्टिंग दिस। सो this is the cathode, this is the negative point of LED, and this is the positive point of LED. I'm just there is a one resistor. Resistor is going to ground part, and positive I'm going to assign as a 13 pin number. It's a red, sorry, black. You can change the color whatever you want. Okay. So you can see that the LED is blinking. So इस तरह से आप यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो अपना जो भी आप लाइक सिमुलेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि भाई आर्डिनो 2-3 हज़ार की चीज़ में क्यों परचेस करूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओ thinkercad.com, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। उस अकाउंट में आप इनिशियली जाओगे तो यहाँ पे आपको जाना है सर्किट्स में। सर्किट्स में आप क्रिएट करोगे न्यू सर्किट, और वहाँ पे आपको जो भी टास्क करना है यू कैन डू। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग लाइक आई वांट टू परफॉर्म लाइक सर्वो मोटर्स। अब जितने भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मॉड्यूल यूज किया, लाइक सर्वो मोटर यूज किया है, आई एम यूजिंग टेम्परेचर कंट्रोल, आई एम यूजिंग अल्ट्रासोनिक्स। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटली लाइक प्रैक्टिकली अगर आपको ये समझना है कि अल्ट्रासोनिक क्या करता है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स नॉर्मली डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो आपको अगर खुद का घर का कुछ ऐसा बनाना है कि चलो यहाँ पे इतना डिस्टेंस आया, फॉर एग्जांपल ये यूज होता है अपनी कार के अंदर। तो अगर गाड़ी के पीछे का आप सेंसर्स देखते हो तो जब रिवर्स लेते हो आप तो वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिस्टम स्टार्ट हुआ तो वो क्या करेगा, सम ऑफ द सेंटीमीटर्स ऑफ डिस्टेंस वो ब्लिंक करता है या फिर आवाज देता है बजर में से, और जैसे उसका रेंज जैसे जैसे कम होता जाएगा वो ब्लिंकिंग का आवाज भी इंक्रीज होता जाएगा। लेट्स सी दैट एग्जांपल आई ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। So this my Arduino I've already implemented. This is my buzzer and this is the ultrasonic sensors. अब ultrasonic sensors के अंदर होता है VCC, ground, echo and trigger. ट्रिगर क्या करेगा, वो हमारा इनपुट है, यानी वो एक सिग्नल भेजेगा, और जो भी अगर ऑब्स्टिकल को थ्रो करके वापस आएगा तो इको क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा, और उसके अंदर जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो हमें क्या करना है, मेजर करना है। उसके हिसाब से हम अपना कोडिंग कर सकते हैं। So let's see just one example demo. So okay, so in this code I have already just अगर सेंटीमीटर लेस देन इक्वल टू 15 होगा तो ये बजर प्रिंट होना, आई मीन साउंड इसका ऑन होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट हियर वन साउंड लाइक अ बजर। इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस डिस्टेंस तो यू कैन सी द साउंड इज गॉन। अगर वापस उसके मैं यहाँ पे चेक करूँ 15 से नीचे जैसे आएगा बजर स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है इफ एल्स, अगर यहाँ पे हुआ कि 15 के अंदर इस तरह से बजर होना चाहिए, उसका अगर डेंसिटी चेंज करनी है तो यू कैन ऑल्सो इनसाइड द इफ एल्स यू कैन ऑल्सो यूजिंग नेस्टेड इफ। सेकंड दैट इज फॉर एग्जांपल दिस कॉमनली आई एम जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वही जो कॉमनली यूज होता है वही दिखा रहा हूँ। अब टेम्परेचर मॉड्यूल,
अब टेम्परेचर ये सेंसर्स है, अगर ये टेम्परेचर सेंसर्स मैंने अपने घर में लगा दिया और उसका एक मैंने यहाँ पे आर्डिनो के साथ रिले बोर्ड को कनेक्ट करके एसी को सप्लाई दे दिया है, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर अगर मैंने कोडिंग में टेम्परेचर सेट किया कि अगर टेम्परेचर 27 से अगर या फिर 25 से अगर ज्यादा हुआ रूम टेम्परेचर, तो एसी अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। So you can see the temperature is right now 70. You can detect here temperature. So यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। You can see the temperature value vary. तो अगर यहाँ पे कुछ अगर आपको कोडिंग में करना है कि चलो समर का टाइम है 36 लाइक नॉर्मल टेम्परेचर होता है अपने लिए, तो 36 अगर रूम टेम्परेचर हाई हो गया 37, तो मेरा एसी स्टार्ट अपने आप हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज करके, रिले का यूज करके आप अपने एसी को भी कंट्रोल कर सकते हो विदाउट एनी रिमोट कंट्रोलिंग। So this is the IoT actual. And that's the one, that is a servo motor. अब सर्वो मोटर का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो। अगर आपको लाइक डोर सिक्योरिटी कुछ बनाना है तो वहां पे आप सर्वो मोटर का यूज कर सकते हो। तो यू कैन सी दिस। सर्वो मोटर के अंदर यहाँ पे 3 पिन होते हैं, वन इज अ ग्राउंड, वन इज पावर एंड वन इज अ सिग्नल। अब सिग्नल के हिसाब से क्या कर रहा है, सर्वो मोटर रोटेट हो रहा है। तो सिग्नल को मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है 6। तो आई एम जस्ट असाइनिंग 6 नंबर, दिस माई ग्राउंड एंड दिस माई VCC। क्लियर। अब क्या कर रहा है कि भाई पोजीशन को एवरी 50 मिली सेकेंड डिले के हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपनी फॉर लूप घुमा के वो जस्ट पोजीशन अपने आप चेक कर रहा है और वो अपने आप सर्वो मोटर रोटेट कर रहा है। So these are the common basics programs example of IoT। अब ये जो मैंने दिखाया, अब इसको आप रियल टाइम में कैसे यूज कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी घर पे परफॉर्म करके रखा है। ऐसा नहीं कि लाइक आप, ऐसा नहीं कि आपको इंडस्ट्री में जाना है तभी आपको IoT सीखना होगा। अगर आपको लगता है घर पे ये चीज की जरूरत है, तो IoT से अगर मैं कैसे करूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। लेट्स सी वन लाइक अब फॉर एग्जांपल एक मुझे प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था लाइक अ फिश मशीन। मेरे घर पे एक फिश पॉन्ड है, तो अगर मैं कहीं पे बाहर जाता हूँ, मेरी फैमिली कहीं पे बाहर जाते हैं हम लोग, तो 2-3 दिन के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे बोल के जाना पड़ता था, भाई आप लोग ना फिश को दाना खिला देना। तो क्या एवरी टाइम अगर वो लोग भूल गए तो 2 to 3 days अगर फिश को खाना नहीं मिला तो वो मर सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम हम डिवाइस बना दे कि चलो वो अपने टाइम के हिसाब से दाना फीड करता है। तो आई हैव इम्प्लीमेंटेड वन project here for my personal use. So I'm using servo motor for this। मैंने यहाँ पे एक सर्वो मोटर का यूज किया है, यहाँ पे मैं आर्डिनो का यूज किया है, और यहाँ पे RTC का यूज किया है, रियल टाइम क्लॉक। वो क्या करेगा, अपने सिस्टम का टाइम वो डिटेक्ट करेगा, यानी अपना जो रियल टाइम होता है वो डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पे बजर, बजर इसके लिए ताकि मुझे पता चले कि दाना फीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आप रियल टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट जो भी होता है तो आप यूज कर सकते हो। सो ये मेरा इस तरह से मेरा वर्किंग है पूरा। Hello, Yes ma'am। Ashish sir. Yes ma'am। You are presenting. Yeah, you're audible now. Okay. Okay. Yeah, Okay. yeah, actually the video was going, so that's why Ha. Oh. can you say that video? Hello Hello. ma'am, have you seen that video? No, sir. Okay, just I'm stop my PPT, so that then okay, is it visible for now? Now, it has started now. Yeah, yeah, Timer based. Yeah. yeah।
सो यूजिंग IoT अगर आपको खुद का भी स्टार्टअप करना है कि चलो मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, तो यू कैन इजीली स्टार्ट योर लाइक अ बिजनेस। लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा बेसिक्स नॉलेज की जरूरत होती है, थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। अगर ये मैंने यहाँ पे बनाया कि भाई चलो टाइम बेस्ड फीड मशीन, तो अगर उसको ऐसा मैं प्रोडक्ट करूँ और सेल करूँ, सो यू कैन अर्न मनी ऑल्सो देयर। सो ऐसा नहीं कि आपको IoT के लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए। जस्ट स्टार्ट योर, जस्ट कोई भी अगर आपको लगे ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है, तो उसको मैं IoT के थ्रू कैसे सॉल्व कर पाऊँ। जस्ट लेट मी शो वन वीडियो ऑल्सो, दिस माई लास्ट वीडियो फॉर यू। अब यहाँ पे मैंने सोचा था कि लाइक एक पर्सन था जो हैंडीकेप था। अब एक दिन ऐसा आया कि वो पर्सन जा रहा था, वो वहीं पे गिर गया। तो अगर वो बंदा गिरता है तो उनके फैमिली को कैसे पता चलेगा कि वो वहीं पे गिर गया कि नहीं। सो आई जस्ट डेवलप वन प्रोटोटाइप फॉर देम कि वहां पे क्या करेगा, वो जैसे बंदा गिरता है तो आफ्टर 10 सेकंड्स सिस्टम क्या करेगा, एक उसका लाइव लोकेशन डिटेक्ट करेगा और उसके जो बिलोड पर्सन होंगे उसके मोबाइल के ऊपर एक लिंक, गूगल मैप की लिंक भेज देगा विद द लाइव लोकेशन। जैसे वो लिंक को क्लिक करेगा तो सीधा गूगल मैप के एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट करके उसको लाइव लोकेशन देख सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है और पर्सन इज फॉलन एट दिस लोकेशन। तो उस टाइप का एक आप बना सकते हो। तो दिस इज माय वन प्रोटोटाइप। सो यहाँ पे इस तरह से आप IoT का यूज कर सकते हो। IoT इज एवरीवेयर। अगर आप सोचो कि यहाँ पे चलो भाई अपने घर में एंटर होना है तो लाइव अपने आज स्टार्ट हो जानी चाहिए, बाहर निकलना है लाइव बंद हो जानी चाहिए, या एक मोशन डिटेक्शन सेंसर्स, अगर आप वही सेंसर्स यूज करो तो आप, और आर्डिनो प्रोजेक्ट्स, आर्डिनो सॉफ्टवेयर का यूज करो, आर्डिनो डिवाइस का यूज करो, तो यू कैन इजीली परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस यूजिंग IoT। अब IoT ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड नहीं है, सिंपल। आपको क्या करना है, सी लैंग्वेज, थोड़ा छोटा छोटा भी, स्मॉल भी, आपको सी लैंग्वेज अगर आता भी है, यू कैन क्रिएट स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन दैट जो डेली बेसिस के लिए यूज होता है। अगर आपको इंडस्ट्रियल IoT के पे जाना है तो आपको थोड़ा प्रोटोकॉल्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लाइक मोडबस प्रोटोकॉल है, I2C प्रोटोकॉल है, वो सब इजीली अवेलेबल ऑनलाइन है, आप सीख सकते हो। और वही आपको यूज करना है, लाइक सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, TCP/IP कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, तब इंडस्ट्रियल IoT पे आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो आई जस्ट वाइंड अप माय सेशन हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर द listening me carefully. Okay, so is there any questions you can ask me, or I just want to show my last page of PPT. Okay, thank you. Okay, Varsha ma'am. Sorry. My mic was mute. One question, some questions from the viewer side. Okay. Sir, can you suggest some projects, industrial projects and normal projects that the students can work on?
Yeah, industrial projects like a kind of you can just visit some land projects. Like for example, I'm giving you one just कि अगर like wind एक project है, wind project, तो normally क्या होता है कि जो पवन चक्की होती है, तो पवन चक्की का लोकेशन अगर आप देखो तो जामनगर या फिर कोई हाई जो स्टेशन होते हैं वहीं पे होता है। तो अगर वहां पे कुछ डैमेज है, तो अगर ऑफिस मेरा बड़ोड़ा में है और मुझे डिटेक्ट करना है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम आया कि नहीं, तो मुझे यहाँ से एक बंदे को भेजना पड़ेगा। वो सर मोटर में या फिर कहीं पर भी चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम आया है, कहाँ पे सिस्टम फॉल्ट आया, वो नोट डाउन करेगा। वो प्रॉपरली नोट डाउन किया कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ही अपने सेंसर्स के डेटा वहां से रिमोटली यहाँ पे मैं लाऊं और ग्राफ के हिसाब से मैं इसके जो भी डेटा आया विंड विंड का, जो भी पवन चक्की का जो भी डेटा आता है, उसके हिसाब से अपना ग्राफ प्लॉट कराऊं, ताकि मुझे पता चले कि ओके ये ग्राफ में यहाँ पे कुछ लो हो चुका है, इस उसका जो मार्किंग होता है उसके बियॉन्ड डेटा गया, तो मुझे पता चलेगा ओके यहाँ पे मेरा फॉल्ट है, इसके थ्रू मैं इसको अभी इसको रिपेयर करना है कि नहीं करना है। अगर उसका जो ग्राफ का प्लॉट जो हाई रेंज बिलो गया, तो डेफिनेटली मुझे अभी के अभी उसको चेंज करना पड़ेगा। सो उसमें यहाँ पे अवेयर कर सकता हूँ कि भाई हाँ चलो ये प्रोजेक्ट में इस तरह से मैं कर सकता हूँ। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पे सेंसर्स यूज करना है और आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करना है। सेंसर्स आप अगर आप क्या यूज कर रहे हो, अगर आप आर्डिनो यूज कर रहे हो तो आपको वाईफाई का यूज करना पड़ेगा, वाईफाई मॉड्यूल का। अगर रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हो तो रास्पबेरी पाई के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट वाईफाई होता है, लेकिन आपको नियरेस्ट जो भी राउटर होगा उसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और आपका डेटा रिमोटली कंटिन्यूस आपके मोबाइल के अंदर आप देख सकते हो। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन छोटा बनाना पड़ता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर हाइब्रिड आप बना सकते हो फ्लटर के थ्रू और एनीथिंग। सो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। Okay. Suppose some एक continuous. सजेस्ट कर सकता हूँ ये वाला एक प्रोजेक्ट। Okay, and continuous data. What is the maximum limit to collect that? How you can अगर आपको find that? हाँ, उसके लिए आप टाइम इंटरवल रख सकते हो कि चलो एक बफर मैंने लिया कि बफर के अंदर एक 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 1 आवर का डेटा एक पहले तो बफर में स्टोर करूंगा, तो एवरी 1 आवर वो मेरे ऊपर एक मैसेज आता रहेगा कि भाई ये डेटाज आर कलेक्टेड, डेटाज आर कलेक्टेड। सो क्या हो सकता है कि भाई एवरी 1 आवर बफर से डेटा मुझे भेजेगा और मेरे ऊपर ग्राफ प्लॉट करेगा और बफर को क्लियर कर देगा। वापस एक 1 आवर बफर में लिया, मुझे भेजेगा, वापस ग्राफ जनरेट करेगा और क्लियर करेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, सेम डेटा मैं डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, ताकि अगर मुझे प्रीवियसली डेटा के साथ अगर चेक करना है कि भाई ये वेरीफाई करना है कि पहले का क्या सिनारियो था और अभी का क्या सिनारियो, 1 घंटे के बाद का क्या सिनारियो, सो आई कैन जस्ट फिगर आउट, आई कैन यूज अ लाइन और अ स्कैटर चार्ट, whatever I'm using. Will it create automatically the graph? It will create automatically because Every mobile facility is there. या मोबाइल यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन यू विल कनेक्ट जो जस्ट कनेक्ट दे। जो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपने एक अगर आप वाईफाई का यूज कर रहे हो आर्डिनो का ESP8266 का, तो एक प्री डिफाइंड एक लिंक आता है, तो आपको क्या करना है आपके मोबाइल के अंदर वो लिंक को फिट कर देना है पहले से बाय डिफॉल्ट। यू कैन मॉडिफाइड। तो वो क्या करें, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, आई एम यूजिंग वन सिंपल, आप ऑटो रिफ्रेश भी कर सकते हो, आफ्टर 1 आवर मेरी ऐप ऑटो रिफ्रेश हो जाएगी, या तो आप मैन्युअली बटन के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने बटन प्रेस किया, रिफ्रेश हुआ, तो वो क्या करेगा, सीधा उस आईपी एड्रेस पे जाएगा, आईपी एड्रेस पे जो डेटा होगा वो लेके आएगा, यानी वन टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो देयर इज अ मास्टर एंड देयर इज अ स्लेव। सो उस तरह से आप कर सकते हो। Okay. Okay. Any questions? I think no more questions, sir. Sir, you can continue. ओके। उसके बाद एक प्रोजेक्ट अभी मैं जो कर रहा हूँ वो भी एक इंडस्ट्रियल आईओटी के ऊपर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स मॉड्यूल्स है, लाइक डीटीसी टेम्परेचर मॉड्यूल है। तो एक जो कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आता है उसको सीरियली लाते हैं बीगलबोर्न के अंदर। अब बीगलबोर्न इज लाइक अ रास्पबेरी पाई, और जो भी डेटा आएगा उसको हम टीसीपी आईपी के थ्रू HMI के ऊपर हम सेंड करते हैं। सो HMI इज नथिंग, इज लाइक अ ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शन, वन थिंग लाइक अपना जैसे टैबलेट होता है वैसे एक HMI भी आता है, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। तो उस तरह से आप कर सकते हो इंडस्ट्रियल IoT। सो क्वेश्चन आते हैं सबके सर के, कहाँ से स्टार्ट करें, मुझे IoT सीखना है, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो पहले अगर आपको IoT लर्न करना है, सीखना है, तो जस्ट पिक वन प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट आप लोगे, उसके ऊपर आप करना स्टार्ट करोगे, तो आप डेफिनेटली यू विल लर्न IoT। सो जस्ट सिलेक्ट वन प्रोजेक्ट। तो पहले वो प्रोजेक्ट में
अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, यू विल जस्ट डिस्कस मी, आई विल हेल्प यू कि भाई आपको कैसे स्टार्ट करना है। अगर एक प्रोजेक्ट है तो पहले मैं बोलूंगा कि चलो ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है क्या, तो पहले वो रिक्वायरमेंट को समझो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आपको पहले क्या करना है, सेकंड स्टेज में क्या करना है, एंड थर्ड स्टेज पे क्या करना है। सो आपको इजीली आप लर्न कर सकते हो। IELTS इज नॉट अ बिग डील, यू कैन लर्न इजीली। ओके, या वर्षा मैडम, आई एम नॉट ऑडिबल मैम। Will you show your last page of your? या Yeah, you are audible. या And your all blogs and all whatever the page was there, Yes. PPT. Will you present it now so that we can provide this to इज इट विजिबल मैम? our students? No, sir, just Okay, okay, I not can yet. stop my presentation. Okay, okay, okay. Okay, is it visible now? Yes, Okay. started visibling. Yeah. Okay, sir. Okay, there is a one change in my, yeah, it's a A. Yeah. Okay. er.ashishprajapati@gmail.com, and my official email ID like from company like ashish@technored.net.in, and the contact number is 98795782001 and 8060610809. Okay, sir. Fine. Okay. So you can also, Okay, done with this? yeah ma'am, I have done with this. Any questions from your side? Yes. No, sir. Done. That was the one question that I got from the students. Okay. Okay, sir. Thank you very much for your valuable information given to our students. Okay. Okay. Thank you very much, sir. Thank you so much, Parul University. Thank you so much, Varsha madam, for the. This is my first webinar, so I don't know how it is like, but I'm good. And Parul University, it's like आपने भी काफी अच्छा support किया है. Thank you so much, and for this give me this opportunity. Okay, sir. Thank you very much. Our students have got lots of information, basic, how to do, how to start, where to start from that. Yeah. And they got the yeah, students को सिर्फ बोलना कि ideas regarding this. Yes, स्टूडेंट को बोलना सिर्फ ये थिंकर कैड है, वहां पे आप अकाउंट क्रिएट करके आप कर सकते हो। IIT अगर आपको सोचना है तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में सोच सकते हो, ऑटो सेक्टर में सोच सकते हो, मेडिकल में आप कैसे कर सकते हो। जस्ट आपको थिंक करना है कि ये प्रॉब्लम है, जस्ट विजुअलाइज दैट प्रॉब्लम एंड हाउ टू आई जस्ट रिसॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग IIT। उनको सिर्फ सोचना है। अगर कहीं पे स्टॉक होता है, जस्ट यू कॉल मी, आई एम अवेलेबल एनी टाइम। Thank you so much. Thank you very much. Thanks for your help. Yes, ma'am. Okay, sir. Okay. Welcome. Okay, fine. Okay. Bye. Bye-bye. Bye. Okay, sir. You can leave. Okay, Ashish sir, you can leave. Okay. Hello, Ashish sir. Hello. Hello.